حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین جانو زندگی کا بہترین ذریعہ حاصل کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا ناچز استاد شیخ پرویز۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سطحی کیمیا سرفیس کیمسٹری انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کا 4واں لیسن ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس میں انجذاب، سطحی انجذاب کی جس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے تھے، ایڈزاربیٹ اور ایڈزاربینٹ، اور سطحی انجذاب کی 2 قسمیں، طبعی سطح انجذاب اور کیمیائی سطح انجذاب، اور طبعی سطح انجذاب اور کیمیائی سطح انجذاب کے درمیان فرق 4 مارکس کا امپورٹنٹ کوشچن تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے سطحی انجذاب کے 3 استعمالات، رنگٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پانی کی تخلیص کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، گیسی نقاب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد آج ہم لوگ اسی چیپٹر میں سطحی کیمیا سرفیس کیمسٹری میں آگے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو کیا ہے لزونتی محلول لزونتی حالت کولائڈل اسٹیٹ میں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ لزونتی حالت کولائڈل اسٹیٹ یہ کیا ہے؟ ایک سب سے پہلے تو اس کو 1861 عیسوی میں 1861 عیسوی میں ایک سائنسدان تھے جن کا نام تھا تھامس گراہم نامی سائنسدان۔ تو تھامس گراہم نامی سائنسدان نے 1861 عیسوی میں کیا کیا؟ کولائڈل محلول کو، کولائڈل حالت کو، لزونتی حالت کو، کولائڈل اسٹیٹ کو مادے کی حالت قرار دیا۔ یعنی کہ مادہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا ہوتا ہے، ٹھوس، مائع اور گیس۔ لیکن تھامس گراہم نے کیا کہا؟ اس کے علاوہ بھی ایک حالت ہوتی ہے جس کو لزونتی حالت کولائڈل اسٹیٹ کہتے ہیں۔ کولائڈل اسٹیٹ کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں حقیقی محلول، ٹرو سولوشن۔ ایک ہوتا ہے حقیقی محلول، ٹرو سولوشن، اور دوسرا ہوتا ہے لزونتی محلول، کولائڈل سولوشن، لزونتی محلول کولائڈل سولوشن، اور حقیقی محلول ٹرو سولوشن۔ تو یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا کولائڈل اسٹیٹ، لزونتی حالت کو تھامس گراہم نامی سائنسدان نے، اور انہوں نے کہا کہ مادے کی 3 نہیں بلکہ 4 حالتیں ہوتی ہے، 4تھی حالت ہوتی ہے کولائڈل اسٹیٹ، لزونتی حالت، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے، حقیقی محلول اور ایک ہوتا ہے لزونتی محلول۔ حقیقی محلول ٹرو سولوشن کس کو کہتے ہیں؟ ایسا محلول جس میں منحل کے ذرات محلل میں پوری طریقے سے حل شدہ حالت میں حل ہو جاتے ہیں اور ہم کو صاف و شفاف محلول حاصل ہوتا ہے، حقیقی محلول کہتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ کلاسز میں محلول میں پڑھا کہ محلول میں 2 حصے پائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے منحل اور ایک ہوتا ہے محلل۔ منحل جو جذب ہوتا ہے، محلل جو جذب کرتا ہے، منحل جو حل ہوتا ہے اور محلل جو حل کرتا ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ منحل اور محلل، جس کو محلول کہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا حقیقی محلول میں کہ ایسا محلول جس میں منحل کے ذرات محلل میں پوری طریقے سے حل ہو جاتے ہیں، اور ایک صاف و شفاف محلول ہم کو حاصل ہوتا ہے جس میں منحل کے ذرات کی جسامت 1 مائکرون سے زیادہ ہوتی ہے، 1 مائکرون سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس محلول کو حقیقی محلول ٹرو سولوشن 1 ملی مائکرون سے کم ہوتی ہے۔ حقیقی محلول میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ 1 ملی مائکرون سے بھی کم ہوتی ہے جس کی جسامت، منحل کی جسامت محلل میں، تو وہ محلول کیا کہلاتا ہے؟ حقیقی محلول کہلاتا ہے۔ حقیقی محلول ایسا محلول جس میں منحل کے ذرات محلل میں پوری طریقے سے حل ہو جاتے ہیں، جس میں منحل کے ذرات کی جسامت 1 ملی مائکرون سے بھی کم ہوتی ہے اور ہم کو ایک صاف و شفاف محلول حاصل ہوتا، اس محلول کو حقیقی محلول کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نمک کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی میں ملاتے ہیں تو نمک کے ذرات پانی میں حل ہو کر پوری طریقے سے حل ہو جاتے ہیں اور صاف و شفاف محلول ہم کو حاصل ہوتا، تو ویسے محلول کو حقیقی محلول کہتے ہیں۔ لزونتی محلول، کولائڈل محلول کس کو کہہ رہے ہیں؟ کولائڈل سولوشن کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایسا محلول جس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ منحل کو ملاتے ہیں تو منحل محلل میں پوری طریقے سے حل نہیں ہو سکتا، جس میں منحل کے ذرات کی جسامت 1 ملی مائکرون اور 1 مائکرون کے درمیان ہوتی ہے۔
1 माइक्रोन और 1 मिली माइक्रोन के दरमियान उसकी जसामत होती है, यानी कि गदला महलूल हमको हासिल होता, साफ और शफाफ महलूल नहीं बल्कि गदला महलूल हमको हासिल होता, तो वैसे महलूल को लजूनती महलूल कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलाइडल स्टेट को थॉमस ग्राहम ने एक मादे की हालत करार दिया था 1861 ईस्वी में। उसमें दो हिस्सों में इसको हम तकसीम करें, हकीकी महलूल, लजूनती महलूल। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। हकीकी महलूल जिसमें मुनहिल के ज़र्रात की जसामत मुहल्लिल में कम होती, 1 मिली माइक्रोन से भी कम होती है, जिसको हल करने पर एक साफ और शफाफ महलूल हासिल होता है, उस महलूल को हकीकी महलूल कहते हैं। लजूनती महलूल ऐसा महलूल जिसमें मुनहिल के ज़र्रात की जसामत 1 माइक्रोन और 1 मिली माइक्रोन के दरमियान होती है, यानी कि जब हम उसको हल करते हैं तो पूरी तरीके से हल नहीं होता, एक गदला महलूल हमको हासिल होता है, तो वैसे महलूल को लजूनती महलूल कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अभी हमने देखा ये होता है, जैसे महलूल को दो हिस्सों में तकसीम करें, एक होता मुनहिल और मुहल्लिल, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन को, लजूनती महलूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं मुंतशिरियत और दूसरे को कहते हैं इंतशारी वास्ता। एक होता है मुंतशिरियत और दूसरा होता है इंतशारी वास्ता। मुंतशिरियत और इंतशारी वास्ता ये दो हिस्सों में हम तकसीम करें, जिसको लजूनती महलूल को या कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो उनको दो हिस्सों में तकसीम करें। कैसा तकसीम करें? वैसा तकसीम करें जैसा महलूल को तकसीम करे थे मुनहिल और मुहल्लिल में, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, मुंतशिरियत और इंतशारी वास्ता। मुंतशिरियत किसको कहते हैं? मुंतशिरियत यानी कि ऐसी शय जो कोलाइडल महलूल में हलशुदा हालत में पाई जाती है, यानी कि वो क्या होती है, कोलाइडल महलूल में मुंतशिर हालत में पाई जाती है, बिखरी हुई हालत में पाई जाती है, तो वो शय को हम मुंतशिरियत कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन की मिसाल हमारे पास है, वो है सोने का पानी। सोने का पानी जो जेवरात पर चढ़ाया जाता है, सोने का पानी जो जेवरात के ऊपर चढ़ाया जाता है, सोने का पानी चढ़ाया बोल के बोलते, तो यानी कि सोने के पानी को हम क्या कर रहे हैं, जेवरात के ऊपर उसकी अस्तरकारी कर रहे हैं। तो सोने का पानी कैसा बना? सोने के जर्रात को हम क्या करें, पानी में मिलाए, पानी में मिलाने से सोने का पानी हमको हासिल हुआ, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि सोने के जर्रात पानी में जाने के बाद वो सोने के जर्रात क्या होते हैं, पानी में मुंतशिर होते हैं, तो सोने के जर्रात मुंतशिरियत कहलाते हैं। वैसे ही एक और कोलाइडल महलूल की मिसाल है, हमारे पास धुआं है। धुआं यानी कि जो कार्बन के जर्रात होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। कार्बन के जर्रात जब हवा में मुंतकिल होते हैं तो धुआं तैयार होता है। धुआं जो हम देखते हैं वो कार्बन के जर्रात हवा में मिलने से होते हैं। तो कार्बन के जर्रात हवा में जाकर क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। तो कार्बन के जर्रात क्या कहलाते हैं, मुंतशिरियत कहलाते हैं। और एक कोलाइडल महलूल की मिसाल हमारे पास है दूध, मिल्क। दूध मिल्क कैसा बना? चर्बी के जर्रात क्या होते हैं, पानी में जाकर मुंतशिर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो चर्बी के जर्रात पानी में मिलने से दूध मिल्क तैयार होता। तो चर्बी के जर्रात क्या हो रहे हैं, पानी में जाकर मुंतशिर होते हैं, तो उसको हम क्या, चर्बी के जर्रात को हम मुंतशिरियत कहते हैं। तो कोलाइडल महलूल में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, लजूनती महलूल में ऐसी शय जो मुंतशिर होती है उस शय को मुंतशिरियत कहते हैं। इंतशारी वास्ता किसको कहेंगे? कोलाइडल महलूल में पाया जाने वाला वो वास्ता जो मुंतशिरियत को भी अपने अंदर जो है ना मुंतशिर करता है, तो उस वास्ते को इंतशारी वास्ता कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सोने का पानी है, सोने के जर्रात पानी में आकर मुंतशिर हो रहे, तो वो पानी में आकर मुंतशिर हो रहे, तो पानी क्या कहलाता है, इंतशारी वास्ता कहलाता है। धुआं है जिसमें कार्बन के जर्रात हवा में आकर मुंतशिर हो रहे हैं, तो जिसमें आकर मुंतशिर हो रहे वो इंतशारी वास्ता कहलाता है, यानी कि हवा क्या कहलाती है, इंतशारी वास्ता कहलाती है। धुआं है, धुआं में क्या हो रहा है, कार्बन के जर्रात दूध है, मिल्क है, उसमें क्या हो रहा है, चर्बी के जर्रात पानी में आकर मुंतशिर हो रहे हैं। तो पानी में आकर मुंतशिर हो रहे हैं तो पानी क्या कहलाता है, इंतशारी वास्ता कहलाता है। तो ये था कोलाइडल महलूल, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि कोलाइडल महलूल, लजूनती महलूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, मुंतशिरियत और इंतशारी वास्ता। तो ये थे कोलाइडल महलूल के दो अक़साम। कोलाइडल महलूल के कई किस्में हैं।
कोलाइडल महलूल की कई मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक हमारे पास है खून, ब्लड यानी कि खून भी क्या है, कोलाइडल महलूल की मिसाल है। दूसरा हमारे पास धुआं, हमारे पास एक मिसाल है, सोने का पानी एक मिसाल है, और दूध एक मिसाल, ये कोलाइडल महलूल की मिसालें हैं। और कई मिसालें हैं, हम इसके बाद देखेंगे। खून, ब्लड एक मिसाल है। खून कैसा बना, खून कैसा बना, जिस्म में पाए जाने वाले अल्बुमिन अशिया, अल्बुमिन अशिया किसको कहते हैं, अल्बुमिन अशिया यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और खून की तख्तियां, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, अल्बुमिन अशिया। ये अल्बुमिन अशिया क्या करती है, पानी में मिलती है, पानी में मिलने से खून, ब्लड तैयार होता है। तो इंतशारी वास्ता भी इसमें पाया जा रहा है, और मुंतशिरियत क्या है, अल्बुमिन अशिया है। अल्बुमिन अशिया क्या कर रहे हैं, पानी में जाकर मुंतशिर हो रहे, यानी कि अल्बुमिन अशिया क्या है, मुंतशिरियत है। और अल्बुमिन अशिया किसमें जाकर मुंतशिर हो रहे, पानी में जाकर मुंतशिर हो रहे, तो पानी क्या कहलाता है, इंतशारी वास्ता कहलाता है। ये दोनों के मिलने से खून तैयार होता है, जो कोलाइडल महलूल की मिसाल। और एक मिसाल धुआं है, जो हम अभी देखे, कार्बन के जर्रात हवा में जाकर मुंतशिर होते हैं, तो धुआं भी क्या है, कोलाइडल महलूल की मिसाल है। कार्बन के जर्रात मुंतशिरियत, और हवा क्या कहलाती है, इंतशारी वास्ता कहलाती है। वैसे ही सोने का पानी है, सोने का पानी कैसा तैयार होता, सोने के जर्रात क्या होते हैं, पानी में आकर मुंतकिल होते हैं, पानी में आकर मुंतकिल हो रहे, सोने के जर्रात क्या कहलाते हैं, मुंतशिरियत, और पानी क्या कहलाता है, इंतशारी वास्ता। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कोलाइडल महलूल, सोने का पानी तैयार होता है। वैसे ही दूध भी क्या है, एक कोलाइडल महलूल की मिसाल है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्बी के जर्रात क्या होते हैं, पानी में जाकर मुंतशिर होते हैं, तो चर्बी के जर्रात मुंतशिरियत कहलाते, और पानी इंतशारी वास्ता कहलाता। ये चर्बी के जर्रात मुंतशिरियत, ये पानी इंतशारी वास्ता, ये दोनों आपस में मिलकर दूध मिल्क को तैयार करते हैं, जो क्या कहलाता है, कोलाइडल महलूल कहलाता है। तो कोलाइडल महलूल की कई मिसालें हैं। जैसे एक मिसाल है हमारे पास, आसमान पर पाए जाने वाले चांद, सितारे, सैयारे है। आसमान, पूरा आसमान क्या कहलाता है, इंतशारी वास्ता कहलाता है। और चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, जितने भी प्लैनेट्स है, वो मुंतशिरियत हालत में पाए जा रहे हैं आसमान पर, वो पूरे मुंतशिरियत कहलाते हैं, और पूरा आसमान इंतशारी वास्ता कहलाता है, तो वो भी एक कोलाइडल महलूल कहलाता है। तो कोलाइडल महलूल मायात में भी पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, और गैस में भी पाया जाता है। धुआं हम लोग गैस की शक्ल में कोलाइडल महलूल देखे, खून एक माए की हालत में हम कोलाइडल महलूल देखे, और धुआं, और एक मिसाल के तौर पर पूरा आसमान है, और चांद, सितारे, सैयारे है ठोस हालत में, वो भी एक कोलाइडल महलूल की मिसाल है। ये पूरा एक बोर्ड है, बोर्ड पूरा है, और उसमें लिखे हुए अल्फाज है, अल्फाज पूरे बोर्ड पर मुंतशिर हालत में पाए जा रहे हैं, तो ये पूरे मुंतशिरियत कहलाते हैं, और ये बोर्ड इंतशारी वास्ता कहलाता है। कोलाइडल महलूल हर एक हालत में पाया जाता है, इसीलिए थॉमस ग्राहम नामी साइंसदान ने कोलाइडल महलूल को मादे की हालत करार दिया। कोलाइडल महलूल हर एक हालत में आप देख सकते हैं, हर एक हालत में देख सकते हैं कि एक रूम है, क्लासरूम है, क्लासरूम पूरा क्या कहलाता है, इंतशारी वास्ता कहलाता है। और इस क्लासरूम में पाए जाने वाले जितने भी अशियाएं हैं, मुंतशिर हालत में एक जगह दूसरी जगह तमाम जगहों पर बैठ रखी हुई है, तो ये तमाम अशियाएं मुंतशिरियत कहलाती है, और पूरा क्लासरूम इंतशारी वास्ता कहलाता है। तो कोलाइडल महलूल हर एक हालत में पाया जाता है, इसीलिए उस कोलाइडल महलूल को थॉमस ग्राहम नामी साइंसदान ने उसको जो है ना मादे की हालत करार दिया। तो ये था कोलाइडल महलूल। आमतौर पर कोलाइडल महलूल को हम क्या कहते हैं, सॉल के नाम से जाहिर करते हैं। कोलाइडल महलूल को सॉल कहा जाता है आमतौर पर, और इंतशारी वास्ते को कहा जाता है लयो, यानी कि इसका पूरा नाम हो गया लायोजॉल। आमतौर पर कोलाइडल महलूल को हम क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं, और उसमें पाए जाने वाले इंतशारी वास्ते को लयो कहते हैं, तो ये हो गया लायोजॉल। अगर इंतशारी वास्ता पानी हो तो उसको हम कहते हैं एक्वाजॉल कहते हैं, और अगर इंतशारी वास्ता हवा हो तो हम इसको कहते हैं एरोजॉल इसको कहते हैं। तो ये इंतशारी वास्ते की बुनियाद पर हम कोलाइडल महलूल को एक्वाजॉल और एरोजॉल कहते हैं। एक्वाजॉल जिसमें पानी इंतशारी वास्ता होता है, एरोजॉल जिसमें हवा इंतशारी वास्ता होता है, एरोजॉल जिसमें हवा इंतशारी वास्ता होता है।
तो इंतशारी वास्ते की बुनियाद पर कोलाइडल महलूल को एक्वाजोल और एरोजोल कहते हैं। कोलाइडल महलूल को लजूनती महलूल को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक होता है मुहल्लिल पसंद कोलाइडल महलूल और एक होता है मुहल्लिल नापसंद कोलाइडल महलूल। दो हिस्सों में तकसीम करें हम किसको? कोलाइडल महलूल को। मुहल्लिल पसंद कोलाइडल महलूल और एक होता है मुहल्लिल नापसंद कोलाइडल महलूल। मुहल्लिल पसंद कोलाइडल महलूल किसको कहते हैं? ऐसा कोलाइडल महलूल जिसमें मुनहिल और मुहल्लिल दोनों में, मुंतशिरत और इंतशारी वास्ता दोनों में बहुत ज्यादा रग़बत पाई जाती है, आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, तो वैसे महलूल को मुहल्लिल पसंद कोलाइडल महलूल कहते हैं, जिसमें मुंतशिरत और इंतशारी वास्ता पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा रग़बत पाई जाती है, तो वैसे कोलाइडल महलूल को मुहल्लिल पसंद कोलाइडल महलूल कहते हैं। नामुहल्लिल पसंद कोलाइडल महलूल किसको कह रहे? ऐसा कोलाइडल महलूल जिसमें मुंतशिरत और इंतशारी वास्ते के दरमियान कोई रग़बत नहीं पाई जाती, ज्यादा रग़बत नहीं पाई जाती, वो अच्छी तरीके से ताकतवर तौर पर जुड़े हुए नहीं होते, वैसे कोलाइडल महलूल को मुहल्लिल नापसंद कोलाइडल महलूल कहते हैं। तो ये था कोलाइडल महलूल, जिसके बारे में हमने आज देखा कोलाइडल महलूल क्या है, कोलाइडल महलूल को किसने पेश किया, कौन सी ईस्वी में पेश किया, और कोलाइडल महलूल में मुंतशिरत और इंतशारी वास्ता पाया जाता, मुंतशिरत किसको कहते, इंतशारी वास्ता किसको कहते, और उसके बाद हमने देखा कोलाइडल महलूल की कुछ मिसालें, खून, धुआं, और हमारे पास था सोने का पानी, धुआं, दूध था, मिल्क, कई मिसालें इसके बाद हमने उसकी देखी। फिर कोलाइडल महलूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, मुहल्लिल पसंद और नामुहल्लिल पसंद। ये मुहल्लिल पसंद किसको कहते हैं, नामुहल्लिल पसंद किसको कहते हैं, ये भी हमने अभी देखा। उसके बाद हमने बोला कि कोलाइडल महलूल को आमतौर पर सॉल कहा जाता और इंतशारी वास्ते को लयो कहा जाता है, यानी कि लयोजोल उसको कहते हैं। अगर इंतशारी वास्ता हवा हो तो वो एरोजोल, और अगर पानी हो तो वो एक्वाजोल या हाइड्रोजोल उसको कहा जाता है। आज की क्लास में हमने कोलाइडल महलूल के बारे में पढ़ा, इसके बाद भी और हमें पढ़ना है। इसके बाद शीरा इमल्शन के बारे में हमको देखना है। तमासी आमिल का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तमासी आमिल भी इसी में मौजूद है, इसको हम तफसील से इसमें पढ़ेंगे। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इजाजत चाहता हूँ, आपका नाज़िर उस्ताद शेख परवेज। अल्लाह हाफिज।